Hi everyone, good evening. Welcome to my channel. I hope everyone's doing well. So yes, it's been long since I had created or published any video. So probably yes, I'll try to be regular more often than not from before. But yeah, so जो लोग ये वाला image देख करके आए हैं ट्विटर से या थंबनेल से, ठीक है, तो for them the stock is called as Andrew Yule Company Limited. So first of all थोड़ा सा fundamental देख लेते हैं कि ये company है क्या और why did I selected it and why am I trading in it. So this is a basically a government of India enterprise, ठीक है, एक सरकारी कंपनी है जो by definition सरकारी बोलते हैं हम लोग. Initially it was just a tea company wherein it had 5 to 6 tea subsidiaries which was amalgamated into Andrew Yule Company Limited. But now it is not a tea company anymore. It deals into electricals, electronics, various types of switch gears, transformers, rectifiers, and all those stuffs. So it is kind of a diversified company as of now. Okay, so that is what the company does, and if you want to read about it, I'll put the link of the company in the description. Now coming at the fundamentals of the company, it's a small cap company having a market cap of nearly 2000 crores. Okay, and don't look at the stock P. Don't look at the stock P right now at all, because if it is a growth company, okay, if it is a growth company and if it is trying to project that okay the future results are going to be good, because जब भाव ऊपर जाता है, जब प्राइस ऊपर जाती है towards a 52 week high or towards a multi-year breakout, okay, it signifies something. It signifies कि someone जो जिसको हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं, दे आर प्रोबेबली अवेयर दैट दिस कंपनी माइट बी गोइंग टू पोस्ट अ वेरी गुड रिजल्ट इन द कमिंग क्वार्टर. सो उसी का एंटिसिपेशन में इट इज रैलिंग राइट नाउ. एंड रिमेंबर, मार्केटिंग इज अ डिस्काउंटिंग फेनोमेना. मतलब पहले मार्केट प्रीएम्प्ट करेगा. अगर रिजल्ट अच्छा आने वाला है तो मार्केट उसको प्रीएम्प्ट करके अभी भाव ऊपर जाएगा, ना कि रिजल्ट के बाद. रिजल्ट अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो वहां से सीधा एक स्लाइड भी नहीं आ सकता नीचे की तरफ. So this is one reason कि you should not look at the PE. Fundamentally अगर बोलूँ तो it's a diversified company, okay, and it has a lot of things in which it's working around, जैसे टी हो गया, ट्रांसफॉर्मर्स जो मैंने बताया आप लोग को, राइट. बाकी डिटेल्स आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो, ठीक है. मैं फंडामेंटल्स पे इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है, और ये कोई फंडामेंटली मैंने कंपनी देख करके नहीं निकाली है, ठीक है. टू बी वेरी स्पेसिफिक, दिस इज मोर ओवर अ टेक्निकल बेट, बट मैं आपको फंडामेंटली दिखा रहा हूँ कि बहुत लोगों का होगा कि ये 52 वीक हाइस तो चलो मार रहा है, बट फंडामेंटली इट्स नॉट गुड डूइंग गुड. तो मैं उस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ओके, फंडामेंटली इट माइट नॉट बी डूइंग गुड बट देयर कुड बी अ टर्न अराउंड अराउंड द कॉर्नर, जिसको एंटिसिपेट करके मार्केट में अभी ये रैली कर रहा है. तो कीप एन आई ऑन द फंडामेंटल्स बट नॉट राइट नाउ, ठीक है. इट्स जस्ट immaterial as of now to keep an eye on the fundamentals. Okay, so this was the fundamentals of the company a bit. अगर आपको चाहिए तो आप डिटेल में जाकर के screener.in ये साइट है, इस पे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. आप यहाँ जाकर के एंड्रू यूल कंपनी को सर्च कर सकते हैं. नाउ कमिंग एट द टेक्निकलिटीज. So first of all, it's a monthly breakout. Okay. Now NSE में इसकी ज़्यादा listing history है नहीं, तो we'll just quickly go to BSE. Okay, BSE में we have good amount of listing history from around 2004. तो अगर आप देखोगे, ये मंथली चार्ट है, ठीक है. दिस इज द लिस्टिंग लेवल्स. पहले महीने दूसरे महीने का ये लिस्टिंग का हाइज है अराउंड द लेवल ऑफ 33. ओके, अगेन इट ब्रोक आउट ऑफ दैट लेवल ओवर हियर. मैं थोड़ा सा जूम इन कर दे रहा हूँ आप लोग के क्लैरिफिकेशन के लिए, एंड मैं आपको मार्क करके भी दिखा देता हूँ. सो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट लेवल, पहला स्विंग हाई ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम. Came down, went up, took resistance from there, again came down, went up. This time it was a breakout, but it was a fake out. It did not sustain. फिर नीचे आ गया, sideways गया. Finally it broke out, made a new all-time high. Now this all-time high is around the levels of 70 से 80 के बीच में होगा. I'll just tell you the exact level. So the exact level is around 100. Basically 100. So that was the all-time high. वहां से फिर ये काइंड ऑफ एक डबल टॉप पैटर्न बना करके
ये डबल टॉप, एक टॉप यहाँ पे दूसरा टॉप यहाँ बना करके ये ब्रेक डाउन हो गया था इसके अंदर, जिसमें एक टाइम पे ये कंपनी ने लो मारा था 8 रुपए के करीब। ठीक है, अब ये तो बहुत ज़्यादा हिस्ट्री हो गई, तो इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं एंड कम टू हियर। ओके, कोविड, दिस वाज द कोविड लॉस ऑफ द कंपनी। ओके, वहां से एक वन वे रैली दिखी थी अराउंड 6 रुपए से लेकर के सीधा 37 रुपीज के अराउंड। ओके, नाउ अगेन सॉरी 33 रुपीज 53 पैसे के अराउंड। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज अ क्रूशियल लेवल, व्हाई? बिकॉज ये आईपीओ के टाइम से इट्स अ फर्स्ट स्विंग हाई और ना फर्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट जहां पे ये बहुत बार रुक चुका है। अगर आप खुद देखोगे तो एक बार, सॉरी फॉर दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड, बट यस, एक बार, दो बार। ओके, उसके बाद इसी लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। ओके, ये रहा इसके पास बहुत बार, तीन चार बार यहीं पे है, फिर दो बार ये रहा। ठीक है, फिर एक बार और रहा। ठीक है, तो दिस 33.50 पैसे और 60 पैसे इज अ वेरी क्रूशियल लेवल फॉर दिस कंपनी। तो पहला स्विंग जो बना था इसका विच वॉज द कोविड लॉस, वहां से लेकर के एक सीधा स्टीप रैली मिली थी अराउंड 33 लेवल्स। वहां से एक फिर एक कंसोलिडेशन फेज चालू हो गया इस स्टॉक में फ्रॉम द मंथ ऑफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फ्रॉम जून, मिड जून से एक पिछले 2 साल पहले जून ना, 1 जून 2021 इट वाज अराउंड 34 रुपीज। ओके, फिर ये 2 साल के कंसोलिडेशन, ऑलमोस्ट 2 साल 2-3 महीने का कंसोलिडेशन का, अब फाइनली ये एक ब्रेकआउट दिख रहा है अपने आंखों के सामने ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम विच इज ऑफ अ क्रूशियल लेवल ऑफ 33.53। ओके, तो ये एक क्रूशियल लेवल था 33.53 जिसका एक बहुत बुलिश ब्रेकआउट ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम हो चुका है। यस, कैंडल क्लोजिंग का वेट करना जरूरी है, अभी मंथ का मिड में ही है हम लोग, तो हो सकता है कैंडल रिवर्स भी कर जाए, बट विल हैव टू कीप एन आई ऑन इट। ठीक है, नाउ इट वाज अ बिगर टाइम फ्रेम, सो बिगर टाइम फ्रेम पे एक चीज तो वेरी सिग्निफिकेंट है कि इट हैज ब्रोकन आउट एंड इट विल बी अ वेरी सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट, इट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट एंड द सिग्निफिकेंस विल इंक्रीज once it passes 47 rupees. Okay, now that was the monthly chart. Now coming to the weekly chart, according to the weekly chart also this is a crucial level. Okay, see here, resistance, resistance, fake breakout, fake breakout, resistance, resistance, and then finally a breakout. ओके, सो इट इज अ क्रूशियल लेवल, बहुत क्रूशियल लेवल है जहां से ये अब ये इस हफ्ते 2-3 हफ्ते से ये थोड़ा बुलिशनेस दिखाया। नाउ कमिंग टू माय पॉइंट कि मतलब व्हाई दिस कंपनी, फर्स्ट ऑफ ऑल टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली दिस इज नॉट अ 52 वीक लो स्टॉक, 52 वीक हाई स्टॉक फॉर मी। ओके, इफ समवन इज फॉलोइंग मी ऑन ट्विटर, ओके, आई हैड शेयर्ड वेरी क्लियरली कि ये एक 52 वीक पिक है मेरा, लो पिक है मेरा, मैंने इसको 52 वीक लो के करीब खरीदा है। ठीक है, ये देखो ये रहा, ये थ्रेड रहा पूरा। ठीक है, bought the stock and an average of 23 levels when it was making a bottoming out pattern. Now the relative strength has come in. So okay, so where the 23 pattern, so observe this thing very carefully. Okay, ऑब्जर्व दिस प्राइस एक्शन वेरी केयरफुली। सो ये वाला जो रैली हुआ ना फ्रॉम द 52 वीक लोज ऑफ 18, अब मैं एग्जैक्टली बॉटम फिशिंग नहीं करता हूं कि 18 रुपए के भाव पे खरीद लूंगा, तो 18 रुपए के बाद ना जब ये पहला स्विंग मारा, ठीक है, ये जो पहला स्विंग था फ्रॉम 18 टू अराउंड 25 लेवल्स, ओके, दिस स्टॉक केम इनटू माय रडार because this was the 21 days moving average which was regained and also relative strength came in, relative strength came back in. Now आई वॉज जस्ट वेटिंग कि एक शेकआउट हो। रिमेंबर, मार्केट कोई बड़ा मूव करने से पहले एक शेकआउट जरूर करता है। ठीक है, तो आई वॉज वेटिंग कि मेरा ये सुपर ट्रेंड एक बार के लिए या तो एक फेक ब्रेकडाउन सिग्निफाई कर दे या कुछ तो सिग्निफाई कर दे। एक मैं बी एनएससी का चार्ट दिखाता हूँ, ज्यादा आप लोग को समझ आएगा। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत क्लियर है। सो दिस वाज द स्विंग जिसका मैं एक रिट्रेसमेंट हुआ जो विच वाज एक्सपेक्टेड, एंड मैं चाह रहा था कि यहाँ पे थोड़ा सा, और यहाँ पे आप देखोगे वॉल्यूम्स बहुत थिन हो गए थे, वॉल्यूम्स थे ही नहीं, बहुत थिन हो गए थे। ये 2 दिन जो वॉल्यूम्स आए थे उसके बाद वॉल्यूम्स वर वेरी थिन। सो देन दिस रेड डे केम, ये 2 दिन ये सुपर ट्रेंड का ब्रेकडाउन हुआ और एक सेल सिग्नल आया। My trade began here because I knew for a fact that this is a shakeout for weak hands. 21 EMA के नीचे ला करके where the volumes were not supportive and even on a red day the volumes were not picking up, which showed that okay, it is probably going to be a shakeout. So over here around the levels of 22, that was my first entry. My stop loss was only 2 rupees. 20 रुपए का stop loss था कि अगर चला तो चला, नहीं चला तो निकल जाऊंगा मैं जल्दी से। तो the next मैंने इस दिन लिया है प्रोबेबली ये ग्रीन डे 1 जून। उसके बाद द सेकेंड डे, नॉट द नेक्स्ट डे, आफ्टर दैट द डे आफ्टर टुमारो, उसके बाद ये चलना शुरू किया। देन केम द पिरामिडिंग,
Then I did pyramiding, and the first pyramiding began over here. The first pyramiding began over here कि ये swing high को जब ये stock तोड़ेगा, okay, which was the swing high of this, ये 25-50 का जो swing high को जब ये stock तोड़ेगा, I will go aggressive. तो ये breakout I bought some, then the retracement towards the 21 EMA, देखो 21 EMA को नहीं तोड़ा, it's respected. तो 21 EMA का retracement में I bought a lot over here, so this was my accumulation zone for me. This is the zone wherein I have accumulated heavily, and my average is around 23-23.50 if I'm not wrong, and I have good amount of quantities. Now if you just see, ये वाला दिन था कि सारे मार्केट को लग रहा था, सबको लग रहा था कि हो गया, बाजार क्रैश हो गया. When the mid caps and the small caps were down 4-5%, this stock was also down. Obviously it will be down. So ये भी stock around 7% के करीब नीचे था. लेकिन हुआ क्या? See, next day it tried to gain up momentum but it couldn't. High बनाया 30 to 30 का, but sustain नहीं कर पाया. उसके बाद देखो पिछले 2 दिन में the move which it has given, okay, the move which it has given 15% and 11%, 26% in 2 days. 26% एंड 2 डेज. एंड अगर मुझे कोई रिसेंटली फॉलो करता है, मैंने 29.10 के लेवल पे ही ये स्टॉक को शेयर कर दिया था सबके सामने आकर के, तो मेरे खरीद से कोई ज्यादा ऊपर नहीं था, 6 रुपए. अगर किसी ने भी वहां पे भी बाई किया होता या होगा, मुझे तो नहीं पता, अगर किसी ने किया तो कमेंट करके जरूर बताना या ट्विटर पे डीएम जरूर करना. तो बहुत मोटा पैसा बन रहा है, ठीक है. नाउ व्हाट आर माय टारगेट्स फॉर इट? सिंपल, ओके, लेट्स गेट ऑन द टारगेट्स. कि जब खरीदे हैं, एंट्री लिए हैं, तो टारगेट्स भी पता होना चाहिए, राइट. सो विल यूज द फीबो फॉर दैट. दिस वाज द स्विंग हाई, दिस वाज द स्विंग लो, राइट. यस. तो पहला टारगेट इज अराउंड 43 रुपीज, सिंपल 43. एंड उसके बाद अगर आपको बीएससी का चार्ट याद हो तो वहां पे एक 47 का ब्रेकआउट है. तो 47 43 के पास अगर किसी को डर लग रहा हो तो एक बार के लिए थोड़ा हल्का हो सकता है. मैं 47 के पहले तो एक स्टॉक नहीं बेचने वाला. इट्स बेटर इफ आई शो दी बीएससी चार्ट, दिस लेवल, अरे नो, दिस लेवल 47 के पहले मैं एक शेयर नहीं बेचने वाला, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट. अगर आप यहीं से देखोगे तो जून 21 दिख रहा है आपको यहाँ पे, और उसके पहले देखो कब का ब्रेकआउट है. ये इस लेवल यहाँ का ब्रेकआउट है, 2018 का ब्रेकआउट है. 18 में ये लेवल आखिरी बार दिखा था, ठीक है. एंड उसके बाद सस्टेन नहीं किया था ये ब्रेकआउट, दिस वाज अ फेक आउट. तो ऑलमोस्ट 5 साल का ब्रेकआउट है. ऐसे ही मैं इसको बेचने वाला हूं नहीं, ठीक है. एटलीस्ट अगर किसी को थोड़ा कंजर्वेटिव भी होना है तो 33 के ऊपर यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 14 rupees, that is which comes to around again 47 rupees. So again 47 is a very crucial level जो मैं उसके पहले एक शेयर नहीं बेचने वाला. And I am bullish on this stock. Fundamentally तो मैं नहीं बोलूंगा, but हाँ, technically it looks like there could be a fundamental reversal of the whole कंपनी. एंड अगर ऐसा कुछ भी है, अगर एक क्वार्टर का रिजल्ट भी एनकरेजिंग आएगा, ये स्टॉक 100 रुपए हो जाएगा, देर नहीं लगने वाली. ऐसे स्टॉक्स में वॉल्यूम बहुत कम होते हैं. आप यहाँ पे देखो वॉल्यूम है ही नहीं, लेकिन जब वॉल्यूम्स आते हैं तो ये सब पागल घोड़े के टाइप चलते हैं. तो दैट इज द होल वीडियो ऑल अबाउट कि ये स्टॉक है. अगेन अ डिस्क्लेमर, consult your financial advisor. This is not a buy sell recommendation, very clearly. This is just my point of view as to why I bought this stock and what are my expectations out of it. क्योंकि ऐसे ही मैंने HBL पावर दिया था, मैंने ट्विटर पे अभी थोड़ी देर पहले शेयर किया, मैंने 87 रुपीज के भाव पे दिया था. आज के डेट में उसका 52 वीक्स हाई इज अराउंड 297. सो वहां से अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 4x हो गया है. तो ये सब कंपनीज ऐसी ही चलती हैं साइकिल्स में. अगर आप साइकिल्स पकड़ पा रहे हो, या एटलीस्ट आपका जो ट्रेडिंग सेटअप है उसके अकॉर्डिंग, जैसे मेरा ट्रेडिंग सेटअप अभी यही है, 52 वीक लो स्टॉक्स में जहां पे भी रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखे या जहां पे भी एक थोड़ा सा बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन दिखे, मैं वहां पे ट्रेड लेता हूँ, ठीक है. तो द नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट अ स्टॉक विच इज देयर इन माय radar. It has not at all given a breakout. It is still making a 52 week low. It is around that 52 week low ka zone. So please stay tuned for that video. That video will probably be coming out tomorrow or day after. So it is under 100 rupees, yes. So again उसमें बहुत potential है. It is a different sector altogether. So I'll bring out that video tomorrow or day after probably. So yeah, thank you so much for watching this video. If you like this video in any way, the technicalities or the way in which I explain to you, please do leave a like, share and subscribe, and please do take care of yourselves. Bye bye and take care.